Welcome to all. We started with C++ and I completed number of topics from this chapter C++. Okay, from the C++ programming language. And I hope you all are clearing your doubts through the sequential link of video. Next we are moving with member function inside and outside the class. Okay, so we already started with object and class, and these are very useful for your object oriented programming, which will help you to create प्रोग्राम इन सिंपल वे. कौन से प्रोग्राम, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे उनको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज member function inside and outside the class. Let's see member functions. तो member function क्या है? So in from the last lecture you are knowing that this is the syntax of class, or this is the basic structure of class. Such kind of structure if you are having, so this is the structure of class which ended with semicolon. जो कैसे होता है, एंड में उसके पास सेमीकोलन होगा ब्रैकेट के बाद में. So here we are having a function. First of all you should know what is a member function, what is the meaning of member function. So we are having this first statement, function declared in the class is known as member function. So we are having a function here. Then अभी मैंने वो भी क्लियर किया था कि आप फंक्शन को पहचानोगे कैसे. तो जिसके भी पास ये ऐसा राउंड ब्रैकेट है उसका नाम जो भी होने दो, ABC, XYZ, PQR, whatever will be, but if you are having this round bracket, so this is your function. Okay, ये फंक्शन हो गया. अगर कोई भी फंक्शन आपके क्लास में डिक्लेयर है, so this is known as member function. Okay, so this is known as member function. Clear? So कभी भी और कितना भी, मतलब आप कौन से भी नाम से डिक्लेयर करो चलेगा. क्लास कैन हैव नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन आपको बताया है, बट यू कैन हैव नंबर ऑफ फंक्शंस. यहाँ पे सिर्फ मैंने वन फंक्शन ही लिया है. यू कैन हैव 2, 3, 4. इट इज एज पर द नीड ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, एंड थर्ड वन इज मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know the meaning of define and declare. What is the difference between define and declare? So we'll see this first, that declare, if you are having statement like this कि आपने सिर्फ बता दिया आपके क्लास में एक print function है, तो आपने सिर्फ ये declare किया है. ओके, define का मीनिंग क्या हो गया, आपने उस print के अंदर क्या है. ओके, आपके उस प्रिंट फंक्शन में क्या डेटा है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, अगर आपने वो पूरा फंक्शन प्रोसेसिंग के साथ दिया है, सो दिस इज डिफाइंड. ओके, आपने उसको डिफाइन किया है. सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन. सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन. सो मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज. फर्स्ट वन इज इनसाइड द क्लास एंड सेकेंड वन इज आउटसाइड द क्लास. We'll see one by one. Member function inside the class. So this topic can come in board for 3 to 4 marks. Okay, if you are having only one topic in board, then it will be for 3 marks. If you are having both the topics, then it will be for 4 marks. So secure your marks. So we are having the meaning of inside here. So let's see. ओके, इनसाइड का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, वी आर हैविंग अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर. ओके, सो इनसाइड में क्या होगा कि क्लास के अंदर ही आपका फंक्शन डिफाइन भी होगा. ओके, फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास. द इंपॉर्टेंट लाइन इज फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास. डिफाइंड मीन्स व्हाट, विथ प्रोसेस. ओके, सो हियर function is defined inside the class. So let's see, class is add. class का नाम है add. I am having private data int ABC and my function is void sum. So this is my function. Okay, member function. And the processing
प्रोसेसिंग में क्या है, एंटर टू वैल्यूज, सो आई विल हैव एंटर टू वैल्यूज, फिर स्पेस देके मुझे कौन सी भी दो वैल्यूज को देना है, सो आई एम गिविंग हियर 2 and 5. सी इन ए बी के थ्रू यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो कंप्यूटर क्या करेगा 2 + 5 करेगा, विच विल बी स्टोर्ड इन सी. सी आउट सम इज, सो विल हैव हियर सम is equal to 7. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास के अंदर ही हमारे फंक्शन का पूरा प्रोसेसिंग है. ओके, सो दिस इज मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास. ओके, मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास. डिफाइंड मीन्स उसका प्रोसेस भी कहाँ है, क्लास के अंदर है. यू कैन सी कि ये फंक्शन क्लोज होने के बाद ही हमारा क्लास क्लोज हो रहा है. ओके, और void main के थ्रू जब हमारा प्रोग्राम लिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है, when compiler will see there is a class add. ये syntax क्या है, this is the syntax for object creation. Okay, object creation. Our second one is your function call. Okay, this is your function call which we already did in last class. This the meaning of these two things. So class add, when compiler will see, compiler will go and check for this class add. Okay, compiler को पता चल गया कि ये प्रोग्राम में एक क्लास है, उसका नाम है add, बट उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट है p जो ये प्रोग्राम पे काम करने वाला है. तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. क्लास में से एक p को बोल दिया है कि p अब प्रोग्राम का काम करने वाला है, जो भी प्रोग्राम में काम होगा. सो p डॉट सम. ओके, तो p क्या करेगा, ये सम फंक्शन को सर्च करेगा. सो वो कहाँ मिला, विद इन द क्लास. ओके, यहाँ पे मिला. फिर सेम वे एंटर टू वैल्यू सी इन ए बी, ये सारा प्रोसेसिंग होगा एंड यू विल गेट दिस टू स्टेटमेंट. ओके, एंड नाउ फाइनली आफ्टर दिस सेमीकोलन मीन्स प्रोसेस विल स्टॉप एंड प्रोग्राम विल क्लोज. सो ये क्या है, प्रोसेसिंग में आउटपुट तो वही मिलने वाला है आपको, बट दिस इज member function defined inside the class. Okay, this topic is member function defined inside the class. Clear? This is the first way. See, we are having program here where ये जो sum function है, ये member function कहाँ पे declare है, class में declare भी है और define भी है. Okay, and we are having और फाइनल आउटपुट लाइक दिस इन टू स्टेटमेंट ओनली. व्हाट इज द मीनिंग, कि हमारे फाइनल आउटपुट में जैसा है वैसा ही होगा, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट. वॉट एवर इज द थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोसीजर में खाली चेंज हो रहा है, बट आवर फाइनल आउटपुट विल बी सेम. नेक्स्ट इज मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास. ओके, अब आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइंड होगा, विल सी. मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास. ओके, ऐसा हो सकता है, ये एक है कि हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट कैसे, बट मेंबर फंक्शंस कैन बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विच वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट, और आई कैन से बेसिक्स ऑफ C++ में हमने किया है. द मीनिंग ऑफ this SRO, scope resolution operator का meaning, and which is represented by 2 times colon. ये क्या करता है, this is used to access global values. okay, SRO का हमने मेन लाइन जो है, मेन फंडा इसको यूज करने का क्या है कि SRO यूज करके हम लोग ब्रैकेट के बाहर की भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. So if we want to define member function outside the class, we have to follow one syntax, and the syntax is return type space class name then 2 times colon. What is the name for this, SRO. Okay, this is scope resolution operator, then function name, whatever will be the function name. So we'll solve one example first. If you are having a class, okay, this is your class.
ये आपका क्लास हो गया। तो इसमें ये फंक्शन मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। दिस इज डिक्लेयर्ड। ये मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट, बट इसको अब मुझे डिफाइन करना है। तो ये प्रोसीजर क्या है, मेंबर फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास। तो क्लास यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। तो इसके बाद प्रोसेसिंग क्या है, इफ वी विल सी, यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप कभी भी फंक्शन नेम के पीछे होता है। ओके क्या है ये, फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम के जो पीछे लिखा रहेगा वो क्या है, रिटर्न टाइप। सो आई पुट हियर वॉइड, देन वॉइड के बाद में क्या है, क्लास नेम, स्पेस देके क्लास नेम। सो स्पेस दिया मैंने यहाँ पे, क्लास नेम क्या है, ABC, देन SRO। उसके बाद में कौन से फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है आपका प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। ओके उसके बाद में यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेसिंग होगा। ओके यू आर हैविंग योर होल प्रोसेसिंग हियर। सो इफ वी आर यूजिंग SRO ऑपरेटर, सो दिस इज द टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ओके सो SRO सिंबल अगर आपको दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, यूजिंग दिस सिंबल यू आर डूइंग प्रोसेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके बट ये प्रोसेसिंग में डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपने डेटा डिक्लेयर किया है। सो क्या कर रहा है, SRO ग्लोबल वैल्यू को ले रहा है, वो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। सो SRO का काम क्या है, इट इज यूज टू एक्सेस ग्लोबल वैल्यू। इसलिए इफ यू वांट टू डिक्लेयर और डिफाइन एनी क्लास, any function outside the class, so you have to use this SRO. Okay so we'll see one program. We are having the same program, just I will show you the change. Okay so in the first part, see here we are declared here that we are having void sum function. Okay and our data is here, and I closed my class here. Then what is the thing, return type, तो क्या है, void है, sum के पीछे क्या लिखा है, void. So this is your return type. Next thing you have to mention class name. Class name क्या है, ADD add. So I mentioned here. Then SRO का symbol 2 times colon and the function name. Function name हमारा क्या है, sum. Okay and here there will be no semicolon. Why? Because you have to do the processing. यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग प्रोसेसिंग, सो यहाँ पे सेमीकोलन है. ओके सो सेम वे व्हेन कंप्यूटर विल रीड, कंप्यूटर अगर रीड करेगा तो क्या समझेगा उसको, एड P, एड इज योर क्लास, P इज द ऑब्जेक्ट, P विल वर्क ऑन इट. ओके तो अभी रीड करने पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है. जैसे ही कंपाइलर रीड कर रहा है, कंपाइलर विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस सम फंक्शन. ओके मैंने एड क्लास का P ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है. दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. सो P क्या करेगा, ये सम फंक्शन को अभी सर्च करेगा और पूरा प्रोसीजर करने वाला है. सो P विल सर्च. तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन सिर्फ डिफाइन किया है, तो डिक्लेयर किया है. सो इट विल सर्च कि फंक्शन किधर डिफाइन किया है. सो ये SRO के थ्रू प्रोसीजर होगा. और यहाँ पे क्या हुआ है, कंपाइल होगा. सेम वे एंटर 2 वैल्यूज if you will have 7 and 12. So C in A and B. So this is value of A and this is B. C in A plus B. So C out sum is. So sum is कितना हो जाएगा, 19. Okay. So this is the work of object. जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो काम करेगा. So this statement is known as our function call and this is object creation and this is declaration. Okay this is declaration. So you should learn such kind of terms and you have to clear your basics, that what is the meaning of declaration, definition, object creation, function call. You should know the meaning of these terms. ओके सो यहाँ पे क्या हो गया, खाली यहाँ पे हमने क्लास में हमारे फंक्शन को डिक्लेयर किया और डिफाइन कहाँ पे किया है, क्लास के बाहर, यूजिंग दिस SRO. ओके एंड वी फॉलोड द सिंटैक्स, जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था कि हाउ टू डिक्लेयर मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. तो हमने वो सिंटैक्स फॉलो किया एंड वी डिड द कोड एंड वी गॉट द सेम 2 लाइन्स फॉर
whatever number we want. Okay, so output may there will be no change, we'll get the same output. See here, this is the member function defined outside the class, and we got whatever you want to enter number you can enter, and we got 4 plus 8, that is 12. Okay, so I hope I cleared your these two topics parallelly, and अगर ये बोर्ड में टॉपिक आता है so you can score 4 mark. You have to practice for this. Next topic will be one board program, that is implement a class circle to calculate area of circle. Okay, तो हमें क्लास यूज करके एक प्रोग्राम करना है जिसमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है. Okay, so we'll do this program next time, and till that time you clear all your doubts of this member function defined inside and outside the class. Thank you class.